हेलो फ्रेंड्स, वीकली करेंसी एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है. दिस एनालिसिस is brought to you on behalf of Ticker TV. Before going to the analysis part, I would like to mention that we will be discussing USD INR, how it behaved in current week and what is expected in future. Discussing USD INR pair alone may not give a better picture without discussing the other important aspects like dollar index, GBP dollar, euro dollar, dollar yen, dollar candy, dollar CNY, Aussie dollar, and crude oil. Therefore, we will be going through the above mentioned instruments along with USD INR. Our focus will be mainly on the technical analysis part, although we will try to consider partly the fundamental aspects like NFP data, CPI data, central bank actions, and different Fed president's comments. Let's start with dollar index. Dollar index hit a 5-week high and posted its biggest weekly gain since 2020. The Fed is seen as having more room to hike rates than central banks of the other economies. Comments from Fed presidents Mary Daly and Bullards, also the upbeat US economic data added to industrial production and retail sales gives enough ammunition for another 75 basis points Fed rate hike in September. Inflation remains the most closely watched indicator in the second half. Will it come down gradually or will it stay elevated, forcing the Fed to keep raising rates? That is the discussion of the market. Federal Reserve President of Federal Reserve Bank of San Francisco President Mary Daly said the central bank should raise interest rates a little above 3% by the end of year to cool inflation, pushing back against investors' bet that the officials would then reverse course. Currently, the Fed rate is 2.25 to 2.50%. Also, Bank of St. Louis Bullard said he is leaning towards another 75% basis rate hike. July FOMC minutes suggested that the Fed will continue to raise interest rate at the next few meetings, but the pace of the rate of hike will be data dependent. Full-blown recession still seems some way off, and policymakers' resolve to contain inflation is indisputable. That's why the treasury yields have been able to recover from their lows pushed at the start of the month, giving the dollar benefiting from renewed safety flows an extra helping hand. अभी आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे. वीकली अगर चार्ट हम डॉलर इंडेक्स का देखेंगे तो ये करंट वीक में एक अच्छा खासा सर्ज आया है सब बिलो, दैट मींस बिलो 105 लेवल से ये 108.10. इट्स ए ह्यूज अप मूव फॉलोड बाय ऑल द डिस्कशंस दैट वी हैड मेड. डेली में अगर हम देखेंगे, डेली में भी कंसिस्टेंटली फ्रॉम 12th August onwards, एक means after bottoming out at 104.75, it moved higher. अभी हमें देखना है कि ये जो स्विंग हाई है आपका 109.30, इसके ऊपर कितना सस्टेन करता है, क्योंकि हमारा जो इमीडिएट अगर लॉन्ग टर्म चार्ट अगर हम देखने का कोशिश करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे ये मंथली चार्ट में ये देख रहे हैं, यहाँ पे आपका 109.3050 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है, बिकॉज ऑफ विच हमने देखा है कि जुलाई मंथ में ये टॉप मारने के बाद थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ था, लेकिन अभी अगेन वंस अगेन इट इज ट्राइंग टू चैलेंज 109.60. ये अगर क्रॉस कर देता है ऑन monthly time frame, then the bigger picture is 120.36.
आई रिपीट, बिगर पिक्चर ऑन मंथली. सो ये इमीडिएटली आने वाला नहीं है. सो डोंट गेट पैनिक कि डॉलर इंडेक्स may move towards 120.50. I am not telling that 120.50, but ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, इस रेजिस्टेंस लेवल के बाद अगर उठ के ऊपर जाता है, then there are higher possibilities. By the way, आज का डिस्कशन थोड़ा सा लेंदी होगा because lot many events are there. अभी आते हैं हमारा डॉलर रुपी पार्ट में. ड्यूरिंग द वीक हमने देखे हैं कि डॉलर रुपी में थोड़ा सा ईज ऑफ हुआ था. आपका 79 लेवल से फिर ऊपर की तरफ गया है. यहाँ पे क्या हुआ कि इन इंडिया का जो सीपीआई डेटा एंड डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन डेटा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, तो सीपीआई डेटा 6.71 पे आया है अगेंस्ट 7.01 प्रीवियस डेटा, and also WPI at 13.93% from the previous month's reading of 15.18. That during the day boosted the INR, but ये जो आपका डॉलर इंडेक्स एंड CNY, that means Chinese yuan, that has propelled, means moved the dollar rupee higher. यहाँ पे क्या हमारा एक्सपेक्टेशन है, अभी जो इमीडिएट हाई है, स्विंग हाई, दैट इज 80.2025, उस लेवल को ये मींस काफी तेजी से चैलेंज करने वाले हैं आने वाले हफ्तों में. उसके बाद हमें देखना है कि ये इसका प्रोजेक्शंस कितना ऊपर तक जाता है. क्या ये 80.50 80.60 लेवल से रेजिस्टेंस लेने वाले हैं या नहीं, and also above 80 some sort of interventions from the central bank may be expected, ताकि ये जो ड्यूरिंग द डे इंट्राडे जो रूपी डेप्रिसिएशन है इतना शार्प होने वाला नहीं होगा. जो भी होगा गैप अप में, ओवरनाइट में गैप अप में हो सकता है. तो ये अगर 80.2025 एरिया को ब्रीच करके ऊपर के तरफ जाता है तो हमें देखना है कि 80.50 80.60 एरिया पे क्या रेजिस्टेंस लेता है या नहीं. एंड ऑल्सो अलोंग विद द अदर करेंसी पेयर्स हमें देखना है. अभी जीबीपी डॉलर में देखेंगे. जीबीपी हैज रिकॉर्डेड इट्स वर्स्ट वीकली लॉस वर्सेस डॉलर सिंस सितंबर 2022 as investors worried about economic slowdown flocked to the US safety haven currencies. चार्ट में देखते हैं. ये देखिए, ये जो इमीडिएट लो था, स्विंग लो था एट 1.1760, ये ऑलमोस्ट चैलेंज कर चुका है, ऑलमोस्ट. तो अभी आने वाले हफ्ते में हमें देखना है कि इज इट ब्रेकिंग कन्विंसिंगली एंड मूविंग, क्रिएटिंग ए फ्रेश लो और नॉट. फंडामेंटली जीबीपी का जो आपका इन्फ्लेशन फिगर से बहुत ही मींस हाई पे है. एंड चार्ट में भी हम वही देख रहे हैं कि काफी तेजी से ये इस हफ्ते में काफी तेजी से फॉल हुआ है. ऐसे भी हमारा, आप अगर डेली एनालिसिस देखोगे, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे वी आर एक्सपेक्टिंग ए रीटेस्ट ऑफ द स्विंग लो, ये हम देख रहे थे. तो ये हमारा जो एनालिसिस है ये है आपका वीकली एनालिसिस. आपको अगर डेली एनालिसिस देखना है तो आप बुरवाज वाई यूट्यूब चैनल में जाके डेली करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस हम रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते हैं, वहां पे आप देख सकते हो. जीबीपी आईएनआर पे भी जीबीपी डॉलर का इम्पैक्ट आया है. हालांकि डॉलर रुपी थोड़ा डेप्रिशिएट किया है, मींस रूपी डेप्रिशिएट किया है डॉलर अगेंस्ट द डॉलर्स, इसके लिए थोड़ा सा पेस कम था, अदरवाइज और भी ज्यादा नीचे जाने वाला था. तो अभी देखिए ये रिसेंट स्विंग लो को टेस्ट कर रहा है. अभी का जो स्विंग लो है दैट इज 93.20. सो अभी हमें आने वाले हफ्तों में हमें देखना है कि ये जो स्विंग लो है इसको रेस्पेक्ट कर रहा है या कॉन्टिन्यूसली इसके नीचे ब्रेक कर रहा है. उसके लिए हमें डॉलर इंडेक्स का देखना पड़ेगा, जीबीपी डॉलर को देखना पड़ेगा, हाउ ओवरऑल द इकोनॉमी ऑफ दीज एरियाज आर परफॉर्मिंग vis-a-vis our dollar rupee also. डेली पार्ट में देखेंगे, डेली पार्ट में देखेंगे तो कैंडल वही है कि बैक टू बैक फॉल हुआ है एंड नाउ इट इज ट्राइंग टू टेस्ट. अभी जो इमीडिएट सपोर्ट हो सकता है वो है आपका 93.8090 एंड उसके बाद हो जाएगा आपका 93.2040. तो दीज आर द कमिंग वीक्स में लेवल्स होगा जो हमें देखना है.
Euro is on a downward trajectory as the Eurozone region facing an acute energy crisis and rising risk of recession. इसके लिए आप देखोगे कि कितना strong sell off दिखा गया in this currency pair on a weekly basis. It traded in between 1.0268 on the higher side and 1.0031 on the lower side. डेली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो ये जो स्विंग लो है उसको टेस्ट करने वाला है. दैट इज स्विंग लो आपका है 0.995060. अभी ये 0.994060 इज एक्सपेक्टेड टू बी ए गुड सपोर्ट एरिया. हमें देखना है कि यहाँ पे ये सपोर्ट लेता है या फ्रेश लो बनाते हैं. यूरो आईएनआर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी काफी सेल ऑफ देखा गया है एंड एंट्री ट्रेडेड इन बिटवीन 81.75 एंड 80.17. तो अभी जो स्विंग लो है दैट इज 79.63. That being the case, 79.40 से 79.60 on a weekly basis is expected to be a good support area. वहां पे हमें freshly overall euro dollar index as well as dollar rupee ये तीनों चीजों को देख के हम assess करना है कि how it is going to behave here. Daily part chart में अगर हम देखेंगे तो वही है support area. इस एरिया पे जाने के बाद हमें ऑब्जर्व करना है कि ये आपका सपोर्ट ले रहा है या कन्विंसिंगली ब्रेक कर रहा है. A boom in energy costs with the help of yen's slide pushed Japan's trade deficit to a record high of 15.9 billion in July. Imports surged 47% from a year ago. BOJ still seen holding firm on rock bottom rates from now. वीकली चार्ट अगर हम देखेंगे ये आपका सब 131 से ये अच्छा खासा रिकवरी करके नाउ क्लोज एट 136.86. दैट बीइंग द केस यहाँ पे एक इमीडिएट जो रेजिस्टेंस होने वाला है दैट इज योर स्विंग हाई एट दिस एरिया 13850 से 13970 के बीच. ये इमीडिएट हमारा रेजिस्टेंस होने वाला है. यहाँ पे हमें देखना है कि whether it is respecting the resistance or breaking convincingly and making a new high. वो हमें देखना पड़ेगा. येन आईएनआर में अगर हम देखेंगे येन आईएनआर में भी एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया because it is inversely proportional to dollar yen. So यहाँ पे एक हमने जो रेंज देखा है 0.5990 ऑन द हायर साइड एंड 0.5829 ऑन द लोअर साइड. अभी ये जो इमीडिएट जो सपोर्ट है 0.5720 0.5740 इस रेंज के तरफ ये जाने वाला है. सो वहां पे जाने के बाद हम फिर दोबारा इसको रीअसेस करेंगे. डॉलर कैंडी यहाँ पे हम देखेंगे कि कैनेडियन डॉलर weakened to a 1 month low against dollar on Friday as safe haven demand boosted the greenback, that is dollar part. इसके लिए हम देखेंगे it traded in between 1.2766 on the lower side and 1.3009 on the higher side. अभी again ये एक important resistance zone आ चुका है that is 130 से 130.50. ये जो zone होगा इसमें क्या convincingly break करता है या नहीं करता है ये हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा. Australian unemployment unexpectedly dropped in July, giving the Reserve Bank of Australia a scope for a more flexible approach in its tightening cycle. इसके लिए हम देखेंगे कि वीकली में काफी strong sell off देखा गया Aussie dollar from last week's high. It got sold off and previous week का जितना भी गेन था पूरा का पूरा ओवरकम कर चुका है. एंड वहां पर भी हमें देखना है कि जो इमीडिएट स्विंग लो है दैट इज 0.6680 उसके वहां पे सपोर्ट लेता है या क्या करता है हमें देखना पड़ेगा. तो बेसिकली 0.6680 से 0.6750 इज एक्सपेक्टेड टू बी ए गुड सपोर्ट एरिया. वहां पे हमें रीअसेस करना पड़ेगा हाउ द प्राइस इज बिहेविंग देयर. यहाँ पे हम देखेंगे कि न्यूजीलैंड डॉलर RBNZ
that means Reserve Bank of New Zealand increases cash rate by 50 basis points to 3%. It's the seventh rate hike in a row in an effort to get on top of the inflation. स्टार्ट ऑफ द वीक में सीएनवाई ने एक नया न्यूज हिट हुआ है दैट चाइना unexpectedly cuts key rates as economic data disappoints and withdrew some cash from the banking system on Monday, that is on 15th of August, to try to revive credit demand to support the COVID hit economy. जहाँ के ग्लोबल मेजर इकोनॉमीज आर हाइकिंग द रेट्स, CNY दैट इज द चाइना का जो करेंसी है वहां पे चाइना ने रेट कट करने का डिसीजन लिया. इट इज टोटली अगेंस्ट द ऑनगोइंग ग्लोबल प्रोसेसेस एंड बिकॉज ऑफ विच आप देखोगे CNY एक अपर मीन्स CNY drastically weakened against the dollars and the range जो ट्रेड हुआ है ये 6.73 ऑन द लोअर साइड एंड 6.84 ऑन द हायर साइड. अगर हम इसको डेली बेसिस में आएंगे, अगर आप हमारा प्रीवियस एनालिसिस देखोगे CNY में 14th जुलाई का मदर कैंडल जो था दैट वाज एन इम्पोर्टेंट. हम वहां पे रिपीटेडली बोल रहे थे कि 14th ऑफ जुलाई का जो मदर कैंडल है उसका रेंज ब्रेकआउट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट. तो पहले यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट लोअर साइड में देने का कोशिश किया था ऑन 10th ऑफ अगस्त, लेकिन फॉलो थ्रू नहीं देखा गया. बट 15th ऑफ अगस्त में एक जूम अप ऊपर की तरफ गया है एंड ब्रोकन द मदर कैंडल्स हाई. उसके बाद मदर कैंडल के हाई रेंज में सपोर्ट लेके अभी जो इमीडिएट स्विंग हाई है दैट इज 6.845060 जोन, वहां पे आपके क्लोज दिया है. यहाँ पे अभी नेक्स्ट हमें देखना है कि इसको कैसे और ऊपर जाता है या नहीं. अभी हमें इमीडिएट जो देखना है ये जो 6.8450 से 6.85, इसको अगर ब्रेक कर दे देता है तो then there are higher probabilities that the CNY may move towards 7.02, but this is on weekly time frame. तो पहले ये जो रेजिस्टेंस को कन्विंसिंगली ब्रेक करना पड़ेगा, देन एंड ओनली देन उसके बाद यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है एंड सपोर्ट लेके हायर हाई फॉर्मेशंस करता है एंड देन एंड ओनली देन 7.02 मे बी सीन इन सम टाइम. वीकली चार्ट है, टाइम ज्यादा लेगा. यूके ऑयल में हम देखेंगे ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द वीक यूके ऑयल मींस ब्रेंट ऑयल में काफी सेल ऑफ देखा गया था. Oil prices dropped as recession worries raised uncertainty over the global crude demand. ये था start of the week में. Then subsequently हमने क्या देखा कि oil prices gained from weekly lows as the positive US economic data and robust US fuel consumption offset concerns that slowing economic growth in other countries could undercut the demand. यानी पहले ग्लोबल डिमांड को लेके ब्रेंट ऑयल सेल ऑफ हो गया था, बट ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द वीक परसेप्शन चेंज हो गया कि मींस यूएस का जो इकोनॉमिक डेटा बेटर दिखा रहा है दैट में ऑफसेट द ग्लोबल मींस डिमांड, जो लेस डिमांड होगा उसको मैच करेगा. दैट इज वाई हम देखेंगे कि 9177 लो मारने के बाद ये 95.76 में क्लोज दिया है. अभी हम वीकली में टेक्निकली देखते हैं, हमारा जो इमीडिएट मींस मेजर रेजिस्टेंस होगा ये होगा आपका 108.00. क्यों? ये है आपका सेंटर बैंड का, बॉलिंजर बैंड का सेंटर बैंड का रेजिस्टेंस है. अगर हम डेली में देखेंगे, डेली में ये नॉन स्टॉप लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस बना रहा है. दैट बीइंग द केस अब डेली बेसिस में 101 इज एक्सपेक्टेड टू बी द इमीडिएट मेजर रेजिस्टेंस. इसके ऊपर अगर क्लोज दे देता है तो ये जो लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन है ये निगेट कर जाएगा एंड मे हेड टुवर्ड्स 107 108. 10 ईयर यूएस ट्रेजरी को देखेंगे तो यहाँ पे आपका 2 अगस्त में एक लो मारा था, एक 2.51 लो मारने के बाद ये कंटिन्यूअसली हायर लो फॉर्मेशंस कर रहा है. दैट बीइंग द केस अभी जो इमीडिएट जो मेजर रेजिस्टेंस होगा वो होगा आपका 3.06 के आसपास.
इसको अगर तोड़ देता है दे देता है देन नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा 3.27। यहाँ पे ओवरऑल जैसे कि स्टार्ट ऑफ द डिस्कशंस में हमने डिस्कस किए थे कि हाउ मींस द मेजर पार्टिसिपेंट्स आर एक्सपेक्टिंग a 0.75 hike in September Fed rate decisions and also there are more rooms to further hike the rates। इसके लिए ट्रेजरी का जो 10 ईयर यूएस ट्रेजरी का जो रेट से ऊपर की तरफ जा रहा है एंड इट हैज डिस्टॉर्टेड द लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस ऑन आपका 8 ऑफ अगस्त एंड उसके बाद ये कंटिन्यूसली उल्टा हायर हाई हायर लो ये पर्टिकुलर आप देखोगे ये जोन पे ये कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस बना रहा है निगेटिंग द मींस प्रीवियस डाउन मूव दैट बीइंग द केस। यहाँ पर चार्ट में भी ये दिख रहा था कि ये हाई का प्रोबेबिलिटीज काफी बढ़ रहा है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर टेकिंग मींस लॉन्ग साइड व्यूज हियर। सो ये जो वीकली करेंसी एनालिसिस है ये आप अभी के लिए इतना ही। विश यू ए हैप्पी वीकेंड। आप लोग एक अच्छा सा रेस्ट एंड रिकवरेशन कीजिए, फिजिकल रिलैक्सेशन कीजिए, मेंटल रिलैक्सेशन कीजिए ताकि नेक्स्ट वीक मंडे ऑनवर्ड्स अगेन मार्केट को नए एनर्जी के साथ नए विगर के साथ आप अप्रोच कर पाएंगे एंड एक प्रॉपर डिसीजंस लेके सर्टेन एक्टिविटीज जो आपके पीएनएल के लिए अच्छा होगा वो आप कर पाओगे।